Hello friends, so let's start our second part of the video, and in this video we are going to discuss the key highlights from the news or the any online update or the online portal on online news or related to the GST or the government. First or any other, that means first we are going to discuss about the Amazon. तो Amazon में आप अगर देखोगे तो बिल टू शिप टू फीचर नहीं था, बट रिसेंटली Amazon is updated with the bill to ship to feature. तो जो भी आप टैक्स इनवॉइस रेज करोगे, Amazon now can issue the invoice with the bill to ship to. तो अर्लियर क्या होता था, उनके पास whatever the bill to is the same address to ship to. So if the customer is not having, so their customer if not having the presence in the another state, then they can't avail the credit. But अभी सब कस्टमर क्रेडिट अवेल कर सकते हैं बिकॉज ऑफ दिस फीचर, एंड दिस इज अगेन वेरी रिलेवेंट फॉर द B2B कस्टमर. तो आप अगर अमेजन का अब नाउ बिलिंग देखोगे तो वो थोड़ा चेंज होके वो बिल टू शिप टू फीचर उन्होंने अपडेट कर दिया है, जिसके वजह से आप ITC एनी बिजनेस कस्टमर कैन अवेल द ITC. Second, related to the complaint. Second, related to the complaint file. तो recently न्यूज चैनल में और इवन द ऑनलाइन न्यूज़पेपर में ये हाईलाइट किया गया है कि कस्टमर नाउ कैन फाइल. So earlier also they can file, but it is now highlighted that the customer can complain or can file the complaint for the denial of the benefit of the GST cut rate. So now what is the denial of the GST of the benefit? So आपको recently पता ही होगा कि recently बहुत सारे feature update हुए हैं, और recently government ने बहुत सारे product का because of the pandemic scenario they had reduced the GST rate for the certain period. मतलब आप sanitizer ले सकते हो, सब medicines ले सकते हैं जो कोविड के लिए यूज होते हैं, थर्मामीटर, ऑक्सीमीटर, जो भी प्रोडक्ट कोविड के लिए रिलेटेड है और सर्टेन डिसीजेस के रिलेटेड है, वो उनका रेट रिड्यूस किया हुआ है, GST रेट. So they had reduced for the certain period, and they are highlighting to the consumer that if the product prices has not come down or the वो product prices के अगर product prices कम नहीं हुए, so please raise the complaint against that dealer with the government. तो ये कंप्लेंट बहुत इजी है और दे कैन ऑनलाइन. और एडिशनली नेशनल एंटी प्रॉफिटरिंग अथॉरिटी डायरेक्टेड दैट कंप्लेंट शुड बी टेक ऑन द प्रायोरिटी एंड शुड बी रिजॉल्व. तो इसमें एज अ कंपनी क्या वे फॉरवर्ड है? तो एज पर एंटी प्रॉफिटरिंग प्रोविजन अंडर GST आप अगर देखोगे, अगर देर इज अ रिडक्शन इन रेट, तो आपका GST रेट रिड्यूस हुआ है किसी भी प्रोडक्ट का, मतलब पहले ज्यादा था, पहले 18% था, लेस अभी 5% का है. तो वो जो रिड्यूस्ड रेट है वो आप उसकी वजह से जो भी बेनिफिट कंपनी को, टैक्स पेयर को हो रहा है, दैट शुड नॉट बी एडेड टू द प्रॉफिट, बट इट शुड बी पास ऑन टू द कस्टमर. So you should have to ensure that the basic cost structure, मतलब आपका जो प्रॉफिट के पहले का जो कॉस्ट स्ट्रक्चर है वो चेंज होना चाहिए. So cost should get reduced. Second, we intend to highlight that there is no specific methodology government has given for the computation of the anti-profiteering, and whatever we had computed. तो हमने जब भी कंपटीशन और एंटी प्रॉफिटरिंग का कंपटीशन देखा, तो द कंपटीशन कुड डिफर इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री. मतलब अगर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है तो उसके लिए कंपटीशन अलग हो सकता है, कंस्ट्रक्शन के लिए इंडस्ट्री है तो उसका कंपटीशन अलग हो सकता है, सर्विसेज की इंडस्ट्री है तो उसका कंपटीशन अलग हो सकता है. तो यू शुड हैव टू सब्सटेंशिएट योर कंपटीशन. और अगर आप कंपटीशन कर रहे हैं तो दो फैक्ट्स है जो आपको ध्यान रखने हैं. तो हमने बहुत क्लोजली कंपटीशन किया है. आप अगर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री देखोगे, जब हमने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का एंटी प्रॉफिटरिंग कंप्यूट किया, तो दैट मेथोडोलॉजी इज completely differ from the manufacturing and service industries, or any, even though for the dealer that methodology completely differs. So each and every company has to decide the methodology as per the product. And whenever you are deciding the methodology or whenever competition, please do keep in the mind two facts. First is the reduction. What is the reduction rate? अगर reduction rate है तो आपका जो methodology है, that should ensure कि आपका जो भी reduction in rate है वो आपका profit में add नहीं होना चाहिए. आपका basic cost उतने से either कम होना चाहिए, और अगर उतने से कम नहीं हो रहा है, मार्केट चेंज के वजह से अगर कुछ चेंज है तो वो चेंज भी आप कंसीडर कर सकते हो प्रॉफिट में. सो दिस इज द फर्स्ट फैक्ट. एंड सेकंड फैक्ट इज, व्हाटएवर कंपटीशन यू आर मेंटेनिंग,
प्लीज सब्सटेंशिएट विद द डॉक्यूमेंट। आपको वो डॉक्यूमेंट ठीक तरह से मेंटेन किया है, एज देयर इज नो स्टैंडर्ड मेथोडोलॉजी। क्योंकि क्या हो जाता, हमने खुद ने नेशनल एंटी प्रॉफिटिंग अथॉरिटी जब इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देते, तब इट्स वेरी मच डिफिकल्ट टू सब्सटेंशिएट देम दैट वी हैड करेक्टली पास ऑन द बेनिफिट। तो आपने जो भी करेक्ट बेनिफिट पास ऑन हुआ है वो सब्सटेंशिएट कर पाएंगे, वैसा डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन कीजिए। अगर आप लास्ट 2-3 years में देखोगे तो देर आर मोर देन 60 above cases which have launched for the anti profiteering। तो डेफिनेटली प्लीज लुक इनटू, अगर आपके प्रोडक्ट का रेट, नॉट ओनली कोविड-19 प्रोडक्ट, क्योंकि रिसेंटली रिड्यूस्ड कोविड-19, बट अर्लियर आल्सो 2017 से कुछ प्रोडक्ट का रेट रिड्यूस हुआ है। और उसके पहले भी इफ आईटीसी, मतलब आपको प्री जीएसटी पीरियड में आईटीसी अवेलेबल नहीं था, बट आईटीसी अवेलेबल हो गया, जैसे कंस्ट्रक्शन सेक्टर हुआ या एनी अदर सेक्टर, अगर इवन दो आईटीसी अवेलेबल हो गया है because of the GST introduction, then also required to the pass on that to the customer. So please revisit your cost structure if any there is any reduction in the rate or increase in the input tax credit on account of the any change in the GST or the GST introduction. So revisit the cost structure, and if you are required, be pass on the benefit to the customer so that to avoid the litigation or the future litigation. So this is about the key highlight